हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई ड्रॉप के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं एक यह डिस्क्लेमर दे दूं दैट दिस इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी आई ड्रॉप और एनी मेडिकेशन, बिकॉज हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट educationally, not recommending it to the viewers, and I am going to explain the mechanism of this eye drop and its pharmacology, history and regulatory background, and I am not persuading people to buy it. Thus I am giving a balanced scientific view including the limitations and safety aspects of this eye drop. So this is similar to a pharmacology class or a medical news summary and not an endorsement of this eye drop. Okay, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगस्त 2025 में यूएस एफडीए ने एक नई आई ड्रॉप को अप्रूव किया है जिसका ब्रांड नेम है विज, और इसमें है एसेक्लिडीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसबियोपिया, यानी कि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें 40 इयर्स के आसपास नियर विजन थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसेक्लिडीन कोई नई दवा नहीं है। Aceclidine was first synthesized in Soviet Union in the 1960s and was used in Europe for decades for the treatment of glaucoma. And if we talk about the mechanism of action of this drug as a muscarinic receptor agonist, just like pilocarpine, तो ये जो एसेक्लिडीन है ये भी पाइलोकार्पिन की तरह एक पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग है, बट एसेक्लिडीन इज अ प्यूपिल सिलेक्टिव मायोटिक. That is, it contracts the iris sphincter muscle and produces a pinhole effect, that is smaller pupil, to increase the depth of focus for near vision, while avoiding the significant ciliary muscle stimulation, thus minimizing the effect on distance vision, which is a problem with older drug pilocarpine, क्योंकि पाइलोकार्पिन डिस्टेंस विजन को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, और इसके बाद जब धीरे धीरे मॉडर्न और मोर कन्वीनियंट ड्रग्स जब मार्केट में आए, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, तो ये सब मॉडर्न ड्रग जो है ये एसेक्लिडीन और पाइलोकार्पिन जैसे जो ट्रेडिशनल कोलिनर्जिक ड्रग्स थे उनको धीरे धीरे वो लोग मार्केट से रिप्लेस करते गए, और ये कोलिनर्जिक ड्रग्स धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑब्सोलीट हो गए फॉर द पर्पज ऑफ ग्लाकोमा ट्रीटमेंट. एंड द कमबैक ऑफ एसेक्लिडीन एज विज आई ड्रॉप इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ड्रग repurposing. Yes, this drug was initially developed and used for a different condition, glaucoma, decades ago, and now it has been reintroduced with a new indication, there is presbyopia. लेकिन देखिए ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक चैनल है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और हर एक पॉइंट पर सवाल किया जाएगा. तो अब सवाल ये उठता है कि जब एसेक्लिडीन और पाइलोकार्पिन ये ड्रग्स ग्लाकोमा में पहले से यूज होती थी, तो क्या उस टाइम किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि नियर विजन इनसे इम्प्रूव हो रहा है? क्या ऐसा नोटिस नहीं किया गया था? यस, किया गया था. नियर विजन में इम्प्रूवमेंट तो उसी समय नोटिस किया गया था, लेकिन बात क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई? साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे. हेडेक, ब्रॉ पेन, डिम विजन इन लो लाइट and decreased night vision were common. So patients found it uncomfortable for routine use, and short duration of action was also a problem. The beneficial effect on near vision lasted only a few hours, requiring multiple doses per day. तो ये short duration of action और इसकी वजह से multiple dosing ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. And also at that time presbyopia was considered a natural aging process, not a disease which requires pharmacotherapy. And also the old formulations of these eye drops were acidic, irritating and caused transient blurring of the vision due to corneal edema. So better glaucoma drugs arrived later on, for example beta blockers and carbonic anhydrase inhibitors and prostaglandin analogs, etc. So these later introduced drugs gradually replaced these cholinergic myotics and interest in them declined sharply. लेकिन अब क्या चेंज हो गया है? एक्चुअली साइंस एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव चेंज्ड एवरीथिंग. अब जो है कंडीशन चेंज हो गई है. Presbyopia is now seen as a quality of life disorder
और ये आई ड्रॉप एक नैनो फॉर्मुलेशन सिस्टम है। नैनो पार्टिकल्स एक्ट एज कैरियर्स टू डिलीवर द ड्रग्स टू स्पेसिफिक साइट्स इन द बॉडी, improving treatment effectiveness and reducing the side effects. Nanoparticles in the eye drops offer benefits like better penetration, longer lasting effects and reduced side effects compared to ट्रेडिशनल आई ड्रॉप्स। यानी कि ये आई ड्रॉप मायोसिस को प्रोड्यूस करती है और उसको एक कंट्रोल्ड ड्यूरेशन तक मेंटेन रखती है। यानी इतना इफेक्ट है कि नियर विजन तो क्लियर हो जाए लेकिन डिस्टेंस विजन ना खराब हो। और जो मोर ट्रेडिशनल ड्रग है पाइलोकार्पिन, तो उसकी जो ड्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई पेशेंट 1-2 डोज अगर उसकी मिस कर दे तो इंट्राऑकुलर प्रेशर डेंजरसली रेज कर सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन विज में अगर देखा जाए तो ये रिस्क तो नहीं है, क्योंकि इसका जो आईओपी लोअरिंग इफेक्ट है वो माइल्ड है और बहुत ही टेम्पोरेरी है। तो विज का मेन गोल क्या है, ये सिर्फ विजुअल इंप्रूवमेंट देता है, नॉट प्रेशर कंट्रोल। आईओपी या इंट्राऑकुलर प्रेशर के कंट्रोल से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए एक सावधानी है, अगर ग्लाकोमा का कोई पेशेंट है और वो ऑलरेडी कोई कोलिनर्जिक ड्रग यूज कर रहा है जैसे कि पाइलोकार्पिन, तो उसके साथ में इस विज आई ड्रॉप को यूज ना करें, क्योंकि एक साथ यूज करने पर ज्यादा मायोसिस हो जाने से एकोमोडेशन स्पाज्म और ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। नैनो फॉर्मुलेशंस एंड लो डोज रेजिमेंट्स, these newer modalities reduce the side effects and patients behavior has also changed now. Now people demand on non-surgical and non-glasses alternatives. और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मैं साइड बाय साइड यहीं पर सॉल्व कर दूं। अभी कुछ महीने पहले इसी तरह की एक और आई ड्रॉप लॉन्च हुई थी, उसका ब्रांड नेम था व्यूटी और उसमें पाइलोकार्पिन थी। तो दिस आई ड्रॉप वाज अप्रूव्ड अर्लियर बाय यूएस एफडीए for presbyopia, but this product did face criticism from ophthalmologists because its action lasted only 4 to 6 hours. It caused headache, brow ache, dim vision and night driving difficulty, and its effect varied among individuals. So it was not a permanent or structural solution. It was only a temporary symptomatic relief. Hence many clinicians called it a makeshift solution, एक जुगाड़ू टाइप का solution। अब ये जो न्यू आई ड्रॉप लॉन्च हुई है विज, इसकी भी अगर बात की जाए तो स्टिल एक्सपर्ट्स कॉशन दैट इट्स नॉट अ क्योर, इट्स ओनली अ टेम्पोरेरी फार्माकोलॉजिकल एड। प्रेसबियोपिया रिमेन्स अ स्ट्रक्चरल एजिंग प्रोसेस, सो अल्टीमेटली रीडिंग ग्लासेस और सर्जिकल ऑप्शंस रिमेन डेफिनेटिव सोल्यूशन हियर। तो यहाँ पर जो आई एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स हैं, उनका ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है दैट एनी ड्रग दैट क्रॉनिकली कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल्स मे अल्टर रेटिनल लाइट एक्सपोजर एंड आल्सो द लॉन्ग टर्म डेटा ऑन एसेक्लिडीन इन प्रेसबियोपिया इज स्टिल लिमिटेड। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो विज आई ड्रॉप्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक पुरानी दवा को मॉडर्न साइंस और नैनो फॉर्मुलेशन के थ्रू रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो भी जरूरी सावधानियां हैं वो भी ध्यान में रखनी है और अपने मन से दवाएं ना यूज करिए, अपने डॉक्टर, अपने आई स्पेशलिस्ट की एडवाइस जरूर ले लिया करिए। सो हियर वी कैन सी दैट थ्रू डिस्कशन, रिसर्च, डेटा एंड कॉशन, so in this way our science grows for the betterment of the humankind. So friends, this was some important, basic and essential information about this important and newly launched eye drop, and soon I will be back with the next interesting and important video. So stay connected and thank you.